पॉलिनेशन हम लोगों ने इसके पहले क्लास 12th के सेकंड चैप्टर बायोलॉजी में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, फिर उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, फार्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड फार्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फिर मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट का कैसे फार्मेशन होता है, क्योंकि जो मेगास्पोर टेट्रायड बनता है उसमें से एक मेगास्पोर जो है फंक्शनल रहता है और वही फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। कहने मतलब ये सिंपल सी जो है बात है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र जो है, उनके ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है वो एंथर से स्टिग्मा पर हो जाए तो इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स है फ्लावर से, मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ये दिस इज वन फ्लावर एंड दीज आर द स्टेमन्स in the flower and this is the stigma. Now the anthers are filled with pollen grains. This is the another flower and these are the stamens and stigma is also present here in the pistil. The pollen grains may reach in the same flower or the pollen grains may be transferred from anther to the stigma of the another flower. In both these processes, transfer of pollen grains is taking place. May be in the same flower or it may be in the another flower, but this is the pollination. This is the process of pollination. Now, on the basis of the transfer of, or you can say the method of transfer of pollen grains, कि ये जो है उसी फ्लावर में हो रहा है, it is happening in the same flower or it is happening in the another flower. The pollination is of basically two types. First one is known as self-pollination and second one is known as cross-pollination. Now, the self-pollination is also categorized into two parts. First one is known as autogamy and second one is known as geitonogamy. We will discuss about them after a short while. And cross pollination is also known as xenogamy or allogamy. So, on the basis of method of transfer of pollen grains, whether it is being performed in the same flower or it is performed in the another flower of the same plant or another flower of the different plant. The pollination is of two types, that is self-pollination and cross-pollination. Now, self-pollination is categorized into further two more parts, that is autogamy and geitonogamy, and cross-pollination is also called as xenogamy or allogamy. Now we will discuss
about the self-pollination. What is self-pollination? The term itself refers that self-pollination is the process in which pollination is happening in the same plant. Now, we will discuss about the self-pollination. The process of transfer of pollen grains in the same flower of the same plant or in the other flower of same plant. So it is categorized into two parts. First one is called as autogamy. What is autogamy? Try to understand. The process of transfer of pollen grains from anther of the one flower to the stigma of the same flower. कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक ये मान लीजिए थैलेमस है. दिस इज द थैलेमस ऑन व्हिच this is the pistil and all the floral parts are arising from here over on the thalamus. This is the corolla and these are the stamens. These are the stamens and this is the anther. Now the pollen grains are being transferred from the anther to the stigma of the same flower. This is the stigma. This process is being performed in the same flower. When this process is happening or processed in the same flower, this is known as autogamy. Auto means self. Auto means self and gamos means होता है. This is categorized into two parts, auto and gamos. Gamos. Gamos means होता है marriage. Marriage. Self marriage means the from anther the pollen grains are transferred into the stigma of the same flower. So this process is known as autogamy. And what is geitonogamy? This is also a type of self-pollination in which there is another flower. This is the another flower and this is the pistil and all the floral parts are coming out of the thalamus. This is the corolla. We have discussed about all these parts in our previous videos. So you have not to be astonished about that. You should not be surprised. You should recall that. This is the ovary, this is the ovary, this is the stigma, and this is the stamen, and this part, the terminal swollen part, is called as anther. Pollen grains are filled in the anther. When the anther is matured, the pollen grains are dehisced. इसका डेहिसेंस हो जाता है तो पॉलन ग्रेन जो हैं जब यहाँ से निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर या यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल करके
इस फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाएं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी और ऑटोगैमी में सिर्फ जो है माइन्यूट सा डिफरेंस है कि ऑटोगैमी सेम फ्लावर में हो रही है और गीटोनोगैमी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रही है। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट वही है, ये ध्यान देना है आपको, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन होता तो दूसरे प्लांट के फ्लावर में या, लेकिन ये उसमें भी कंडीशन है कि सेम स्पीसीज में होगा, ठीक है। तो गीटोनोगैमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of the another flower of the same plant, of the same plant। कहने का मतलब कि प्लांट तो वही है, लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो रहा है वो उसी मतलब दूसरे फ्लावर से हो रहा है, लेकिन प्लांट वही है। और ऑटोगैमी में क्या होता है? उसी फ्लावर के अंदर होता है। तो ऑटोगैमी जो है ज़्यादातर उसमें होगी जो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ये भी बाईसेक्सुअल ही फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि अगर वही प्लांट है तो बाईसेक्सुअल ही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे पी प्लांट होता है, पी है, जैसे बीन्स हैं, हिबिस्कस है, तो ये सारे प्लांट जो हैं क्या हैं? दीज आर द बाईसेक्सुअल प्लांट्स या बाईसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इसकी वजह से बाईसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है कि जो इस जिसमें मतलब स्टेमन्स भी हैं और उसमें पिस्टिल भी है। कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बोथ आर्गन्स आर प्रेजेंट देयर। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? अब इसमें देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में आपने देखा कि उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर में या उसी फ्लावर में उसी प्लांट के उसी फ्लावर में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower to stigma of another flower of different plant, of द सेम स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्पीसीज वही होनी चाहिए, क्योंकि स्पीसीज जब तक वही नहीं होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं, मतलब वो पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नाउ दिस इज द, सपोज दैट दिस इज वन प्लांट एंड दिस इज द फ्लावर of one plant. This is the another plant of the same species. And these are the stamens coming out of the flower, and stigma means pistil is present here. Suppose that it has no anthers, it has only pistil, and it has no pistil, and it has only stamens. Now the pollen grains
are being transferred from this flower to this flower, means from anther to stigma of this flower. Now the species is the same. For example, papaya. अगर हम पपाया स्पीसीज को देखें या मेज में देखें, ये ज़्यादातर जो हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें। मतलब कहने का या तो ये स्टेमिनेट हैं, वेदर दे आर स्टेमिनेट और दे आर पिस्टिलेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट? Staminate means the flowers which have only stamens. They have only stamens, and pistillate means the flowers which have only the pistils, means they have only the female reproductive organ. तो ये जैसे पपाया में होता है, these are called unisexual flowers, और इसको हम डायोसियस फ्लावर्स भी कहते हैं। डायोसियस प्लांट्स हैं। डायोसियस मीन्स जिसमें केवल एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, दैट ओनली इट मे बी आइदर स्टेमिनेट और इट मे बी पिस्टिलेट। तो ऐसे फ्लावर में या ऐसे प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन के ही चांसेस हैं। तो कहने का मतलब जो बाइसेक्सुअलिटी है, दैट इज द साइन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड क्रॉस पॉलिनेशन जो है फेवर करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, क्रॉस पॉलिनेशन फेवर्ड होता है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवाइसेस और द एडाप्टेशंस व्हिच आर यूज्ड इन द सेल्फ पॉलिनेशन। डिवाइसेस इन द self pollination. Self pollination. Now we will discuss about the what are the devices, or you can say what are the contrivances which can be used in the self pollination. मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या डिवाइसेस यूज करते हैं, या प्लांट्स में फ्लावर्स में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज रहती हैं। द डिवाइसेस टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, आर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या होगा? बाइसेक्सुअलिटी, आल्सो कॉल्ड एज hermaphroditism, also called as hermaphroditism. कहने का मतलब कि अगर फ्लावर्स जो हैं बाइसेक्सुअल हैं, दैट मीन्स इफ द स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, देन द सेल्फ पॉलिनेशन विल बी फेवर्ड एंड क्रॉस पॉलिनेशन विल बी prevented, can be prevented. Cross pollination can be prevented when the flower is bisexual. That means the stamen and pistil is present in the same flower, so there is a very big chance of self pollination, because pollens have to not travel for a long distance. They have not to travel a long distance, so they are in the closed connection with the both sex organ, that is मेल एंड फीमेल। सो जैसे आप इसका जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, पी या ब्रेसिका में। ब्रेसिका मीन्स मस्टर्ड प्लांट जो है, पाइसम है, पी पाइसम सेटिवन इसका बायोलॉजिकल नेम है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है मस्टर्ड का है, मस्टर्ड में या हिबिस्कस में। इनमें सब में क्या होता है कि जो मतलब हर्माफ्रोडिटिज्म या बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, दैट मीन्स द
stamens and pistil are present in the same flower, are present in the same flower। एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टिल होने की वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सो दीज आर द डिवाइस नंबर 1 which will favor the self pollination and will prevent the cross pollination। What is the second device, or you can say second adaptation, which can favor self pollination and prevent cross pollination, and that is homogamy। homogamy देखिए, जितने भी टर्म होते हैं उन्हीं टर्म से ही हम उसका जो है मीनिंग निकाल सकते हैं। बाई मीन्स टू एंड सेक्सुअलिटी मीन्स सेक्स ऑर्गन्स जिसमें प्रेजेंट हूँ, तो मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। होमो मीन्स सेम और गैमास मीन्स अभी हमने आपको बताया, गैमी मीन्स फ्यूजन या मैरिज जिसको आप कहते हैं। तो जिसमें दोनों ही मतलब ऑर्गन्स जो हैं जब मैच्योर होते हैं सेम टाइम पर, व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर्ड एट द सेम टाइम। एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इन द फ्लावर। जब फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और एंथर एक ही समय में मैच्योर हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम होमोगैमी कहते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही एंथर मैच्योर होगा इसका डेहिसेंस हो जाएगा, तो इसका जब डेहिसेंस हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स इससे डिस्पर्स होने लगेंगे, तो दैट विल रीच इनटू द एट द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं पहुंच जाएंगे, और जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो जाएगा। तो होमोगैमी क्या है? जब दोनों ही एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर हों, तो ये फेवर करेगा। एक साथ मैच्योर होंगे तो इससे डेहिसेंस तुरंत हो जाएगा और ये तुरंत उसको रिसीव कर लेगा, तो ये प्रोसेस एक साथ हो जाएगी। तो इट विल फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट द क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन इज द क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, what is क्लिस्टोगैमी? Cleistogamy is the process, or you can say characteristic of the flower in which the flower never opens. The flower never opens. कहने का मतलब फ्लावर हमेशा बड कंडीशन में रहता है, फ्लावर कभी खिलता नहीं, फूल कभी खिलता नहीं। और फूल जब खिलेगा नहीं तो क्या होगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है फ्लावर के अंदर ही हो जाएगा। और ये फ्लावर जो हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। ओके, you have to, I can tell you the examples of homogamy and cleistogamy, but you have to search for the examples of both these two. We will discuss in the next video and ask you the examples of these. Okay, कि होमोगैमी किस फ्लावर में देखने को मिलेगी और क्लिस्टोगैमी किस में देखने को मिलेगी। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, और नेबर ओपन कहने का मतलब ये क्लोज्ड रहते हैं बड कंडीशन में, ऐसे फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। इससे क्या होगा कि फ्लावर के बंद फ्लावर के ही अंदर यानी क्लोज्ड फ्लावर के ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, and the pollen grains have not to be transferred for a long distance. They are in the closed connection in the closed flower. Okay, now